दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेणाय वरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय धनञ्जयः बुद्धौ शरणम् अन्विच्छा बुद्धौ शरणम् अविच्छान कृपाणः फलहेतवः फलहेतवः दूरेणीवारं कर्म दूरेणाय वरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय धनञ्जयः बुद्धौ शरणं विच्छ शरणं अन्विच्छ कृपाणः फलहेतवः फलहेतवः दूरेणेहि गवारं कर्म कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय योगा धनञ्जयः तौ शरणम् अन्विच्छ शरणम् अन्विच्छा कृपणः फलहेतवः फलहेतवः दूरेण दूरेण discard it at a long distance. start it at a long distance. He certainly He certainly avaram avaram abominable abominable karma activity karma activity buddhi yogat buddhi on the strength of Krishna consciousness. on the strength of Krishna consciousness. Dhananjaya, Dhananjaya, conqueror of wealth. O conqueror of wealth. Buddhau, Buddha, in such consciousness. consciousness. Sharanam, Sharanam, full surrender. surrender. Vicha, Vicha, kripanaha, Kripanaha, misers. miser. Falahetavaha, Falahetavaha, those desiring fruitive results. those desiring fruitive activity. Fruitive results. Fruitive results. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. O Dhananjaya, O Dhananjaya, keep all abominable activities all abominable activities far distant distant by devotional service. And in that consciousness, surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work, misers. देखो, purport by Srila Prabhupada की जय. कौन पढ़ेगा purport? अच्छा पढ़ो. माता जी मैं रीड करूं? अच्छा ठीक है पढ़ो. पढ़ो ना. Yes, Mataji. One who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of Lord gives up all the engagements save working in Krishna consciousness. As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor.
One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of Lord. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। इस श्लोक में यहाँ पे प्रभुपाद देखो, दूरे न को कहता है डिस्कार्ड इट एट लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दूर दूर फेंक दो। डिस्कार्ड मतलब क्या? फेंक देना। और लॉन्ग डिस्टेंस, दूर ना मतलब दूर दूर तक फेंक दो। क्या फेंक दो? अवरम, एबोमिनेबल कर्म, अवरम कर्म, दूरेन ही अवरम कर्म। अवरम कर्म मतलब जो कर्म अच्छा नहीं है उसको दूर दूर तक फेंक देना है। दीदी को बुला। जो कर्म अच्छा नहीं है उसको कहाँ फेंक देना है? दूर फेंकना है। तो कृष्णा अर्जुन को क्या बता रहे हैं? अर्जुन को कौन सा कर्म फेंकने को बोल रहे हैं अर्जुन? कृष्णा एबोमिनेबल, अवरम कर्म, एबोमिनेबल है ना। अब अर्जुन कौन सा ऐसा कर्म कर रहा है जिसको कृष्णा बोल रहे हैं दूर दूर तक फेंक दो? कृष्ण की बात को ना मान। हाँ जी, नॉन कृष्णा कॉन्शियस थिंग कर रहा है ना। जो भी करने की सोच रहा है वो कृष्णा की इच्छा के विरुद्ध है। हाँ या ना? यस, एवरीबडी विथ मी? Yes. क्या ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, देखो कृष्णा जो बता रहे हैं उनके बताने के एग्जैक्टली ऑपोजिट करना, उसको क्या कहते हैं? अवरम कर्म, अबोमिनेबल एक्टिविटी। एबोमिनेबल एक्टिविटी इंग्लिश में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अवरम कर्म। कौन सा आसान है याद रखने में आपको, अवरम कर्म या एबोमिनेबल एक्टिविटी? अच्छा, तो आपको एबोमिनेबल एक्टिविटी याद रखने को आसान है तो हम एबोमिनेबल बोलेंगे। सो सारे वो काम जो कृष्णा बताते हैं और उसके ऑपोजिट किए जाते हैं उसको एबोमिनेबल बोलेंगे। एग्जाम्पल दे दो मुझे एबोमिनेबल एक्टिविटी का। बोलो जरा। सुबह लेट उठना। कृष्णा ने, ओके। और बताओ। रात को लेट सोना। क्या है? और बताओ। माता जी, अन्य से अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसे ना करना। प्रिस्क्राइब ड्यूटी ना करना। वंडरफुल, सो प्राउड ऑफ यू जुई। आपको बिल्कुल अच्छा याद रहा कल का श्लोक। सो अबोमिनेबल एक्टिविटी में हम डाल देते हैं, रुको मैं और एक शेयर करती हूँ। कृष्णा को satisfaction करना। हाँ, शाबाश, कितनी बड़ी बात कही आपने। एबोमिनेबल एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी बोली जुई ने अभी? नॉट डूइंग प्रिस्क्राइब ड्यूटी। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस मैम। नॉट डूइंग प्रिस्क्राइब ड्यूटी। और बताओ, और क्या एबोमिनेबल एक्टिविटी हो सकती है? मैंने बोला था ना। और क्या, अभी क्या बोला था? इरेगुलर हैबिट्स ऐसे बोल सकते हैं। जो आप सोने का बोल रहे हो ना, जल्दी सोना चाहिए, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, इरेगुलर हैबिट्स मतलब बिल्कुल ही रेगुलरिटी नहीं है हैबिट्स में। अच्छा, और क्या बताया? एबोमिनेबल एक्टिविटी में और क्या आ सकता है? एंटी कृष्णा कॉन्शियस एक्ट। एंटी मतलब जो कृष्णा बोल रहे हैं वो सुनना नहीं, उसके ऑपोजिट ही कर देना। इनएक्शन इज अ सिन। सही बात है, इनएक्शन भी एबोमिनेबल एक्टिविटी है। और बताओ। माता जी, हाँ, कृष्णा को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति को ज्यादा ये करना, ज्यादा दूसरे व्यक्ति वो तो कृष्णा लास्ट चैप्टर में बोलेंगे ना, मुझे शरण चले जाओ। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? कौन सी एक्टिविटी कृष्णा अर्जुन को बोल रहे करने के लिए, अर्जुन नहीं सुन रहा। कौन सी चीजें बोली? युद्ध को। माता जी, कैप्रिशियस वर्क ना करने के लिए कहा। कैप्रिशियस वर्क क्या होता है? विदाउट सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी। कैप्रिशियस वर्क जहां पे अथॉरिटी ने साइन नहीं किया है, तो कैप्रिशियस वर्क मतलब नॉट सैंक्शनड बाय कृष्णा। कौन से काम हो सकते हैं नॉट सैंक्शनड बाय कृष्णा में?
फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हो गए, उसके बाद गुरु की बात को ना मानना, माता पिता की बात को ना फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, मानना। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को ब्रेक करना, disobedience, वो भागवतम के अनुसार डिसोबीडियंस टू फादर। हाँ ठीक है। और डिसोबीडियंस टू माता जी कृष्णा के प्रति निष्ठा न होना। ओ निष्ठा, हाउ ट्रू, निष्ठा, नो निष्ठा, नो निष्ठा। और क्रोध, ऐसे तो सारे ही शास्त्र ला रहे हो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, माता अभी जी, तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से। अननेसेसरीली कृष्णा ने क्या है हुआ जी, अननेसेसरीली कुंठा करना या फिर टेंशन लेना। ओ या कल कृष्णा ने बोला था योर कंसर्न इज माय कंसर्न, प्रभुपाद ने बोला था योर कंसर्न इज कृष्णास कंसर्न, राइट। सो वरी, वरी क्या है, अबोमिनेबल एक्टिविटी है। शाबाश जुई। एक और not going according to Krishna, like उसी को अबोमिनेबल एक्टिविटी कहते हैं। नहीं अपनी इच्छा कृष्णा के साथ ना आचरण। राइट, नॉट बीइंग अलाइंड विथ कृष्णाज ओपिनियन, Right. वही अबोमिनेबल एक्टिविटी। फल की शाबाश। इच्छा करना। एग्जैक्टली अगर पेपर देके आते हैं तो पेपर के बाद चेक करना कितने मार्क्स मिलेंगे, उसमें गैम्बलिंग करना कि 50 आएंगे, 80 आएंगे, 90 आएंगे, 99 आएंगे, 99 आएंगे तो 1 मार्क क्यों गया, 80 आएंगे तो 20 कहाँ गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। फल की चिंता करना, गुड और बैड कोई फर्क नहीं पड़ता, फल फल होता है जो कृष्णा देते हैं। सो क्या बोला, फल की चिंता करना। हाँ, गैम्बलिंग अबाउट द फ्रूट, गैम्बलिंग अबाउट द फ्रूट ऑफ एक्शन, अपने आप को करता समझो, वो तो है ना, इसीलिए तो फल के एक्शन। हाँ, अपने आप को करता अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, उस श्लोक तक नहीं पहुंचा। अच्छा, ये बहुत अच्छा था, आपने पॉइंट बताया प्रभु जी की फ्रूट ऑफ एक्शन, अगर आप एक्शन करते हो उसके ऊपर, फ्रूट के ऊपर गैम्बल करते हो तो दैट इज डेफिनेटली एन एंटी भगवत गीता बिहेवियर। सो वी शुड नेवर एवर गैम्बल अबाउट कितने आएंगे मार्क्स, क्या नहीं आएंगे, कम क्यों आएंगे, कम क्यों आ रहे हैं, और ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। victory, फेलियर, failure, oh right, concern about victory or failure, oh this is Veda gave the right point। और क्या क्या है abominable activity में, gain of my responsibility, हाँ, कृष्णा's concern, so वही तो concern about victory and failure is anti भगवत गीता। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचना, Wonderful. That's what, victory and failure के बारे में, profit, concern about victory और failure, profit और loss, शाबाश। और बताओ क्या है abominable activity, याद है कल का श्लोक हमने किया था उसमें। हाँ टॉलरेंस, हाँ, मतलब टॉलरेंट नहीं होना, वो टॉलरेंट नहीं होना। एक श्लोक में बताया है, सेकंड चैप्टर में ही बताया, टॉलरेंस, नॉट बीइंग टॉलरेंट। कार्बन दोषों में कृष्णा ने सिंध कर दिया, नॉट सरेंडरिंग टू कृष्णा इज आल्सो ये राधा रानी वही तो अर्जुन को कहती है, तू सरेंडर करता है और फिर आर्ग्यू करता है, फिर काहे का सरेंडर। नहीं, सरेंडर करना है ना, लेकिन हाँ, सरेंडर तो करना है, फिर आर्ग्यू करता है ना अर्जुन, उसी को तो राधा रानी ने खंडन किया है, राधा रानी उसी का तो खंडन किया, सरेंडर करते हो तो फिर कौन से क्वेश्चंस, फिर तो क्वेश्चन की बात ही नहीं आती, आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो कृष्णा को, राइट। वो राधा रानी का भाव है ना। हाँ, तो उसी भाव तक तो है। एक और आया इंद्रियों से करना, राइट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस माता जी, ग्रेटिफिकेशन इज एबोमिनेबल एक्टिविटी। और बताओ getting bewildered by the changes, क्या क्या क्या, getting bewildered by the changes, गेटिंग बिविल्डर्ड बाय सेंसेस, उसी को हम कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसी को सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा जी, yes माता। ठीक है, उसी को सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और क्या है, आपको कुछ आइडिया आ रही है, और क्या हो सकती है।
और क्या हो सकता है एबोमिनेबल एक्टिविटी में? अपने आप को शरीर समझना। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला आप आत्मा हो, और हम क्या सोच रहे हैं? हम शरीर है। हम शरीर है। तो कोई आकर हमें बोलता है तुम काले हो, तुम नाटे हो, तुम ज्यादा ही लंबे हो, देखो तुम्हारी पीछे से पीठ निकल आ गई है, ऐसा कुछ कुछ भी बॉडी को लेकर बॉडी शेमिंग करता है, तो वो एंटी भगवत गीता है, क्योंकि हम तो शरीर समझ रहे हैं। सो अगेन सेकंड चैप्टर के हिसाब से नॉट कंसिडरिंग वन सेल्फ एज सोल, ये भी एबोमिनेबल एक्टिविटी में आ गया। और कुछ है क्या सेकंड चैप्टर में जो याद आ रहा है? माता जी, किसी भी मायावादी या फिर ऐसे किसी भी इंसान के फ्लावरी वर्ड से अट्रैक्ट हो जाना। राइट, गेटिंग अट्रैक्टेड बाय स्वीट वर्ड्स ऑफ मायावादी, राइट। डूइंग वर्क विथ व्यवसाय एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट, मतलब आप काम करते करते भी आप फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी इसमें एबोमिनेबल एक्टिविटी। अगेन इट इज अ एंटी भगवत गीता स्टेप, डूइंग वर्क विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट। आप काम कर रहे हो, तो हमने कल ही डिस्कस किया था कर्तव्य तो कर्तव्य है, कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसमें ये कहा आ गया मन नहीं कर रहा एंड ऑल दैट। बहुशा का आप भावना और कर्तव्य मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकता ना, तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकता, वैसे भावना और कर्तव्य मिक्स नहीं हो सकता। जो कर्तव्य है तो वो कर्तव्य करना ही करना है। जैसे परीक्षित महाराज जंगल में पेड़ों की भी रक्षण करते थे, एनिमल्स की भी रक्षण करते थे। हाँ जी बोलो बेटा, कौन सा पॉइंट है? दीदी ने वही बोल दिया। नहीं बोला, बोलो। मैंने नहीं बोला। व्यवसाय आपने क्या बोलते हैं? क्या एग्जैक्टली बोलना क्या? एबोमिनेबल एक्टिविटी क्या है उसमें? ज्यादा एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचना। ओ राइट, बहुशा क्या बोलते हैं? बुद्धयो व्यवसायी नाम, ये कहना चाहते हो? व्यवसायित्मक बुद्धि इज नॉट एबोमिनेबल एक्टिविटी। बुद्धयो व्यवसायी नाम मतलब बुद्धि का व्यवसाय करना इज एबोमिनेबल एक्टिविटी। बुद्धि का बुद्धयो व्यवसायी नाम मतलब, बुद्धयो व्यवसायी नाम का मतलब क्या है? थिंकिंग ऑफ मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम and not focusing on one specific thing. Alright, और कुछ है याद आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब आप सबको? यस माता जी। माता जी, और आत्मा को imperishable ना समझना। अच्छा जूही कुछ बोल रही है, बोलो। माता जी, आत्मा को imperishable ना समझना। आत्मा को इम्पेरिश, हाँ आत्मा को ऐसे समझना जैसे आत्मा कैन बी क्रश्ड, सही बात है। इसका मतलब नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोल, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल, सोल के जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं पता होना, इट सेल्फ इज एन एबोमिनेबल एक्टिविटी। अगेन इट इज अ एंटी भगवत गीता स्टेप। गॉट इट? तो आपको दिन में अपने काम करते हो आप, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या कि मैं टूवर्ड्स भगवत गीता बिहेव कर रहा हूँ या मैं एंटी भगवत गीता बिहेव कर रहा हूँ? आई एबल टू आइडेंटिफाई व्हेन यू डू सर्टेन थिंग्स? वो उसमें आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? इतने सारे तो हमने देखे इरेगुलर हैबिट्स। लेट उठते हो तो एंटी भगवत गीता, टाइम पे उठते हो तो टू इन लाइन विथ कृष्णा। तो जो भी हम एंटी भगवत गीता एक्टिविटी करते हैं वो एबोमिनेबल एक्टिविटी आई। गॉट इट? आपके पास डायरी है तो लिख लो। चलो इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ शेयर अभी, एंड आई विल शेयर अगेन भगवत गीता। सो हमारी फर्स्ट लाइन क्लियर है सबको? अवरम कर्म, अवरम कर्म समझ में आ गया सबको? एवरीबडी गिव मी रिप्लाई। यस शाबाश शाबाश। सो नेक्स्ट है बुद्धि योगा धनंजया। सो प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेशन में कृष्णा क्या बता रहे हैं कि जितनी भी है धनंजय, धनंजय मतलब क्या? कॉन्करर ऑफ वेल्थ। तुम जहां पे भी जाते हो तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा
जिस भी राज्य में जाता है वहां पे लोग तुम्हें सरेंडर करते हैं और तुम्हें पेटी पेटी भर के ढेर सारा यज्ञ की सामग्री देते हैं। उसमें डायमंड्स भी आते हैं, ज्वेलरी आती है, ढेर सारा सोना चांदी घी सब कुछ आता है। इसलिए अर्जुन को क्या बोला जाता है, ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो अर्जुन को किसी ने डिफीट नहीं किया था, सो इसलिए अर्जुन का नाम क्या पड़ गया, धनंजय। इतना धन लेके आता है वो सिर्फ अपनी काबिलियत के बल पर, उसको काबिलियत दिखानी भी नहीं पड़ती। अर्जुन का नाम सुन के, कृष्ण का नाम सुन के सरेंडर करते थे राजा लोग, इसको कहते हैं धनंजय। तो कृष्णा कह रहे, ओ धनंजय, कीप ऑल एबोमिनेबल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय डिवोशनल सर्विस। बुद्धि योग, बुद्धि योग को क्या कहा गया है, बुद्धि योगा का मतलब क्या, भक्ति योग। देखो, इट इज ओनली प्रभुपाद हु कैन ट्रांसलेट बुद्धि योग टू भक्ति योग। है कोई, पूरे अर्थ प्लैनेट पे कोई नहीं है जो बुद्धि योग को भक्ति योग बताएगा। प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में बोला है बुद्धि योगाद, मतलब एट द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है जब हम कृष्ण भक्ति में अपनी बुद्धि लगाते हैं। नहीं तो हमारी खुद की बुद्धि जो है हमारी वीकनेस बन जाती है जब हम एंटी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो बुद्धि योग इज इक्वल टू भक्ति योग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बुद्धि योगा इन द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी बुद्धि जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है इफ यू यूज इट इन सर्विस ऑफ कृष्णा, डिवोशनल सर्विस। बुद्धि योगा धनंजय। तो अभी कृष्णा ने क्या बोला, हे अर्जुन, दूर है ना अवरम कर्म, दूर फेंक दो अपने एबोमिनेबल एक्टिविटीज, सारे अवरम कर्म दूर फेंक दो। कैसे फेंकोगे, हाथ में कौन सी शक्ति के साथ, बुद्धि योगा, बुद्धि योग की शक्ति के साथ हे धनंजय दूर फेंक दो। तो यू कैन इमेजिन कि आप शॉर्टपट खेल रहे हो, हाथ में बड़ा सा गोला है और वो गोला एबोमिनेबल एक्टिविटीज का है, आवरम कर्म, और आपके हाथ में आर्म्स में जो शक्ति है वो है बुद्धि योग, भक्ति योग। उस शक्ति के बल पर तुम दूर दूर तक अपनी एबोमिनेबल एक्टिविटीज फेंक दो। इन शॉर्ट, जब आप सुबह उठ के जाप करते हो उस वक्त आप सो भी सकते हो, हाँ या ना, लेकिन जब आप सुबह उठ के जाप कर रहे हो या कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हो, डीटी वर्शिप कर रहे हो, जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो कृष्णा, अगर आप भगवत गीता के श्लोक भी नहाते नहाते गा रहे हो, आप तो कुछ भी गाते गाते नहा सकते हो ना, हाँ ना, कोई भी मटीरियलिस्टिक गाना गा सकते हो। बट यू आर सिंगिंग भगवत गीता श्लोकाज वाइल टेकिंग बाथ, तो वो कौन सा योग हुआ, बुद्धि योग। यू आर यूजिंग योर बुद्धि, भक्ति योग, सो इट इज बुद्धि योग, भक्ति योग। तो अभी ये करोगे तो एबोमिनेबल एक्टिविटी करने से बचोगे या नहीं बचोगे। सुबह आप लंबा टाइम पर सोने की चक्कर के जगह पे इफ यू चैंट, then you are using buddhi yoga. With the strength of buddhi yoga, you are throwing away the abominable activity of sleeping for longer hours. लंबे लंबे समय तक सोने की जो एक बैड हैबिट है उसको आप फेंक रहे हो by inculcating a good habit of chanting Lord's name early morning. बुद्धि योग के बल पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बुद्धि योगाद मतलब इन विद द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्ट्रेंथ है वो हमारी, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ डिवोटी। बोलो, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस is the biggest strength of a devotee. Is the biggest strength of the devotee. तो बुद्धि योगा धनंजया, कृष्णा कह रहे हैं कि बुद्धि यूज करके हे धनंजय दूरे ना अवरम कर्मा, दूर फेंक दो अपने अवरम कर्मा, एबोमिनेबल एक्टिविटीज को फेंक दो। क्या यूज करके, बुद्धि योग यूज करके फेंक दो। फिर कृष्णा कहते हैं बुद्धऊ शरणाम अन्विच्छा। अब आपने फेंक दिया, आपकी भावना में क्या है, सुबह सुबह चैंटिंग कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो लंबे समय तक, तो आपकी भावना कृष्णा कॉन्शियस हुई या नहीं हुई, अंदर से फीलिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस के आगे। अब वो वाली कॉन्शियसनेस लेनी है, बुद्धऊ। बुद्धऊ मतलब क्या, इन सच मूड, इन सच कॉन्शियसनेस क्या करना है, शरणम अन्विच्छा, शरण जाना है कृष्णा को, उस मूड में कृष्णा के शरण जाना है। तो ऐसे नहीं होता कभी कि पहले शरण जाने का नाटक किया
और उसके बाद जाकर जाप कर ली। जाप करते करते कृष्ण भावना हृदय में उतर जाती है और फिर शरणागति आती है। सो कृष्णा कह रहे बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, ट्राई टू फुल्ली सरेंडर। इस भावना में ट्राई टू फुल्ली सरेंडर। कृष्णा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ट्राई टू, अन्विच्छा, अन्विच्छा मतलब ट्राई करो। कृष्णा ये नहीं बोल रहे करो, कह रहे ट्राई तो करो, ट्राई तो करो कह रहे। पहले कृष्णा कॉन्शियस डिवोशनल सर्विस करो, डिवोशनल सर्विस करके बुद्धि यूज करो। डिवोशनल सर्विस में बुद्धि योगा तो हो गया। बुद्धि योग यूज करके आप कुछ ना कुछ भक्ति के कोई काम करोगे, आपके हाथ से दूर फेंका जाएगा एबोमिनेबल एक्टिविटी वाला काम। फिर ऐसी भावना में शरणागत हो जाओ। इस भावना में शरणागति ले लो। कृपणा मय फल हेतवाहा। So in that consciousness you surrender. Now those who want to enjoy the fruits of their work are misers. जिनको एंजॉय करना होता है, सपोज पेपर दे के आया बच्चा, पेपर दे के आया और उसके बाद वो एंजॉय करना चाहता है मार्क्स को वापस आके, तो ऐसे इसको क्या कहेंगे? माइजर्स। इफ ही इज कॉन्स्टेंटली कॉन्टेम्पलेटिंग कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, शायद 78 आएंगे या फिर 68 आएंगे, इसको क्या कहेंगे? माइजर्स। Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. You want to enjoy ना, उसको क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? Misers. So purport में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, one who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of Lord gives up all engagements save working in Krishna consciousness. तो जिसको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई ना कि मैं जीवात्मा हूं और मैं नित्य काल के लिए कृष्णा का दास हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा और आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। कल के श्लोक में हमने क्या डिस्कस किया था? I am the servant. इधर आप कृष्णा के सर्वेंट बन जाओ या कृष्णा के सर्वेंट के सर्वेंट बन जाओ, दासानु दास बन जाओ, है ना। एक बार आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मैं जीवात्मा हूं और मैं कृष्ण का नित्य काल के लिए दास हूं, मतलब ऐसा एक मोमेंट नहीं है हमारे एग्जिस्टेंस का जब हम कृष्ण के दास नहीं होते या दासानुदास नहीं होते। उस वक्त यू स्टार्ट सेविंग वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस वक्त क्या हो जाता है, आप सारे काम जो है कृष्णा की प्रसन्नता करने के लिए कृष्णा की प्रसन्नता में करते हो, कोई भी काम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करते। अंडरस्टूड? अभी आप बताओ, इतने सारे डिवोटीज है, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, अपना परिवार संभालते हैं, क्या वो कृष्णा के सर्वेंट है या नहीं है? है या नहीं है? Everyone is servant of me. They are servant of Krishna. How? Because they are offering all their work to Krishna. Even if a man goes to office, he is thinking, I am doing it in service of Krishna. I am taking care of family in service of Krishna. If a child goes to school, in service of Krishna. If a child studies, in service of. If a child plays, it is in service of Krishna. Krishna. So whatever you do, if you do in service of Krishna, then that is Krishna conscious activity. तो जिस दिन आप acceptance level पे आ जाते हो ना, मैं कृष्ण का दास हूं, आप सेल्फ ऑब्सेशन से बाहर आ जाते हो। पहली बात तो अंदर आपका इतने आप अपने आप से ऑब्सेस्ड रहते हो ना कि जो भी करना है अपने लिए करना है, जो भी करना है अपनी फैमिली के लिए करना है, मेरे लिए करना है। मैंने उस ऑब्सेशन से बाहर आ जाते हो और हर कर्म जो है वो आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा। कृष्णा हैप्पी हो रहे हैं परिवार का टेक केयर करके, कृष्णा हैप्पी हो रहे हैं अगर मैं अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी पढ़ाई का अच्छे से करता हूँ, उससे कृष्णा हैप्पी हो रहे हैं, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करता हूँ। अगर मैं किसी क्लास को जाता हूँ, सपोज स्पोर्ट्स के क्लास को जाता हूँ या म्यूजिक क्लास को जाता हूँ, मैं उसमें भी अच्छा करके कृष्णा को हैप्पी करता हूँ, क्योंकि कृष्णा को पसंद नहीं
मैं कोई भी काम 19-20 करूं। कृष्णा को अर्जुन जैसे लोग पसंद है, who give their 100% in learning something। अर्जुन 100% देता था ना कुछ भी सीखने में। अर्जुन ने कभी ऐसे बोला द्रोणाचार्य ने सिखाया अब मैं रात को सोता हूँ, ऐसे हुआ कभी? रात को प्रैक्टिस करता था ना, अंधेरे में तीर कैसे चलाने करता था या नहीं करता था? फिर वो कभी कभी कान में रुई डालता था कि अगर किसी दिन मुझे सुनाई नहीं दिया तो क्या मैं मार पाऊंगा किसी को, वो भी ट्राई करता था। सो ही हैज क्लोज्ड एक एक सेंस, महाभारत में लिखा है अर्जुन अपना एक एक सेंस क्लोज करता था, विड्रॉ करता था और प्रैक्टिस करता था। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ही वांटेड टू अप्लाई हिज धनुर्विद्या। नाउ दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गिविंग योर 100% इन योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। आप जो भी कर रहे हो ना उसमें अपना 100% देने से हैप्पी कौन होता है? कृष्णा। So you give your 100% in service of Krishna. बोलो, I give my 100% in the prescribed duty in service of Krishna. I give my 100% in my prescribed duty in service of Krishna. So Krishna, I give my 100% I give my 100% in, give my 100% in my prescribed duty in my in my prescribed duty in service of Krishna. service in of the service of Krishna. लिख रहे हो आप? लिखते भी रहना, ठीक है? Yes, Mataji. गुड। सो आप कुछ भी करते हो ना, अगर बेस्ट देते हो अपना तो उससे कृष्णा खुश होते हैं। उस दिन एक जीवात्मा जो है ना वो अपने लिए काम करना छोड़ती है और कृष्णा के लिए काम करना शुरू करती है। इसलिए उस जीवात्मा के अंदर बहुत एंथुजियाज्म होता है, उस जीवात्मा के अंदर बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म आ जाता है। प्रभुपाद इतने बूढ़े थे लेकिन फिर भी एंथुजियाज्म से यूएस गए या नहीं गए? वहां पे जाके कितनी जोर जोर से कीर्तन किया प्रभुपाद ने और पूरी एनर्जी के साथ प्रचार किया या नहीं किया? और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटा किया, हम तो सिर्फ 1 घंटा हरि कथा करते हैं। प्रभुपाद सुबह शुरू हो जाते थे बात करना, इतनी मीटिंग्स होती थी प्रभुपाद को, इतनी लेटर्स को रिस्पॉन्ड करना था, पूरे वर्ल्ड से लेटर्स आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी प्रभुपाद की, इंटरव्यूज होते थे, न्यूज़पेपर छापते थे प्रभुपाद, बैक टू गॉडेड मैगजीन छापते थे। वो तो छपना ही छपना था बैक टू गॉडेड, हर महीने अपना अपना बुक राइटिंग करते थे। 1 सेकंड नहीं था प्रभुपाद के पास। कहाँ से एनर्जी आई? बिकॉज ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट इन सर्विस ऑफ कृष्णा। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके एनर्जी दिखाई, इंडिया में थे, इलाहाबाद में उनकी फार्मेसी की ये थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। प्रभुपाद मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते थे। ही यूज्ड टू गिव 100% देयर ऑल्सो। ही हैड अ कार बिफोर एनीबडी हैड अ कार। Prabhupada gave his 100% in his pharmacy business also. Why he did? In service of कृष्णा। प्रभुपाद ने अपने हर आश्रम में कृष्णा को 100% प्रसन्न किया है। सो ही वॉज ऑलवेज इन अलाइंड विद भगवद गीता। कभी एंटी भगवद गीता एक स्टेप नहीं लिए प्रभुपाद ने। दैट्स व्हाई ही इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गॉट इट? सबको फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आया? जिस दिन आपको ये एक्सेप्टेंस आएगा ना कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं आत्मा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्टेंस आने दो। अपने अहंकार से बाहर निकलो कि मैं ही मैं हूं, बाकी सब पानी कम है, या फिर आई एम वन ऑफ द अदर पीपल, ये समझना भी गलत है। मैं दास ही हूं और मैंने हर काम कृष्ण की, तो हाथ में लिया गया काम कभी छोड़ो मत बीच में। नेवर एवर लीव इन बिटवीन। जब तक खत्म नहीं होता ना बाकी सारी चीजें गिव अप कर दो। फिर एंजॉयमेंट गिव अप कर दो, नींद गिव अप कर दो, जो भी आपके हाथ में आ रहा है ना वो गिव अप कर दो। लेकिन जो काम हाथ में लिया है वो खत्म होने तक रुकना नहीं है, करते रहना है, क्योंकि कृष्णा को बड़ी प्रसन्नता होती। अर्जुन नहीं सोते थे रात को, हाथ में लेते थे ना कोई विद्या, वो पूरी तरह मास्टरी करने के बाद ही छोड़ते थे उसको। As already explained, बुद्धि योग means ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। देखो प्रभुपाद कितनी अच्छे से डिफाइन करते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना प्रभुपाद के पर्पॉट्स, डायमंड्स है। पर्पॉट नहीं पढ़ा तो क्या भगवत गीता पढ़ी?
एज ऑलरेडी एक्सप्लेन, प्रभुपाद कह रहे हैं बुद्धि योग मीन्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। कृष्णा के लिए प्रेम पूर्ण सेवा, मैकेनिकल सेवा नहीं, रोबोट की तरह। रोबोट है क्या हम लोग? उठे, हाथ में ग्लास लिया, जल अर्पण किया, फिर उठे, फूल लिए, डाल दिए सामने कृष्णा के, वस्त्र पहना दिए, मैकेनिकल रोबोट है हम। जब भी डीटी वर्शिप करते हैं लविंग फीलिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? भगवत गीता हाथ में लेते हो, लविंग फीलिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? या नीचे कहीं पे भी फेंक देनी चाहिए पढ़ के? कैसे लविंगली कैसे ट्रीट करना चाहिए भगवत गीता को? उसको चांस लिया वहीं पर रखना। तो हृदय में प्यार आना चाहिए ना। सबसे डोमिनेटिंग फीलिंग क्या होनी चाहिए? क्या? प्रेम पूर्ण सेवा, प्रेम पूर्ण। कृष्णा की अगर आपके हाथ में छोटी सी बांसुरी आ जाती है, घर में कृष्णा के कंगन होते हैं, डीटीज के कंगन होते हैं, मुकुट होता है, छोटी छोटी चीजें अगर इधर उधर दिखती है तो सिर्फ उठाना है रोबोट की तरह या प्यार से उठाना है, जैसे कि छोटे बच्चे के सॉक्स उठाती है माँ? कैसे उठाना है? अंडरस्टूड? नाउ व्हेन यू स्टडी, फ्रस्ट्रेट होके पढ़ाई करनी है करनी पड़ रही है, ओ माय गॉड क्या दिमाग खराब है, या फिर प्रेम से करना है? अगर पढ़ाई, इफ पढ़ाई आपकी ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और यू आर डूइंग इट इन सर्विस ऑफ कृष्णा, तो वो सेवा हुई ना कृष्णा के लिए। पढ़ाई तो सेवा हुई ना कृष्णा के लिए, हुई या नहीं हुई? अब पढ़ाई कैसे करनी है? प्रेम से करनी है, चिड़चिड़ करके करनी है? कैसे करनी है? अच्छा मानो आपको प्रेम से, हाँ, मानो आप डांस क्लास के लिए जा रहे हो, कराटे क्लास के लिए जा रहे हो, या फुटबॉल सीखने जा रहे हो, लड़के गिटार सीखने के लिए जाते हैं, कुछ कुछ हारमोनियम सीखने के लिए जाते हैं, कभी कभी मन नहीं करता, वहां पे जाने के बाद प्रेम से सीखना है या फ्रस्ट्रेट होके सीखना है? माता जी प्रेम से। शाबाश। तो हमारा प्री डोमिनेंट इमोशन क्या होना चाहिए? अगर हम, शाबाश, अगर हम सब कुछ ही कृष्णा की सेवा में कर रहे हैं, वेयर इज द स्पेस फॉर फ्रस्ट्रेशन? वेयर इज द स्पेस? कुछ लोग कहते हैं ना, मैं अपने जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं अपने परिवार से फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं अपने बॉस से फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं टीचर से फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं स्कूल से फ्रस्ट्रेट हो गया, दोस्तों से फ्रस्ट्रेट। अरे अगर जब जो भी काम कर रहे हो प्रेम से करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी क्या? प्रेम से क्यों करोगे? क्योंकि भक्ति मतलब ही प्रेम पूर्ण भक्ति होती है। भक्ति मैकेनिकल नहीं होती, रोबोटिक नहीं होती। हम कोई एआई से बने रोबोट्स नहीं है जो बिना कुछ सोचे या फिर बिना किसी भावना के पूजा करेंगे कृष्णा की, है ना? हाँ या ना? समझ आ रही है सबको बुद्धि योग का रियल मीनिंग क्या है? लविंग सर्विस। ये वर्ड कभी नहीं, हाँ ये देखो, ये वर्ड मत भूलना, इसको अंडरलाइन करो भगवत गीता में, लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। लिखो डायरी में, लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। बुद्धि योग मतलब आपको लगेगा ब्रेन से करना है, बट प्रभुपाद ने अगर भगवत गीता अगर ब्रेन से लिखी होती तो मुझे बताओ इतने लंबे लंबे परपट लिखते क्या? आप देखो गोरखपुर की भगवत गीता कितनी अच्छी है, परपट्स है उसमें? नहीं है। बाकियों की भगवत गीता देखो, उसमें है इतने लंबे लंबे परपट्स? कहीं नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने बड़ी प्रेम से भगवत गीता लिखी। उनको पता था कलयुग के जीवात्माएं बड़ी परेशान होंगी, कलयुग की जीवात्माओं को कुछ समझ में नहीं आना है संस्कृत पढ़ के, ट्रांसलेशन पढ़ के भी नहीं समझ में आना है, इन्होंने क्या करना है? मिसअंडरस्टैंड ही करना है। तो प्रभुपाद ने परपट प्रेम से लिखे या नहीं लिखे? हमारे प्रति प्रेम दिखा रहे हैं ना। आप बताओ, कैन यू नॉट फील द लव ऑफ प्रभुपाद व्हेन यू रीड परपट्स? फीलिंग आती है नहीं कि प्रभुपाद हमारे पर बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं कलयुगी जीवात्माओं पे, इसकी वजह से इतना एफर्ट ले रहे हैं इतने अच्छे से लिखने में? इसको कहते हैं प्रेम पूर्ण भक्ति कृष्णा की। जब आप प्रेम से करते हो ना, आपका ऑफिस का एक भी काम ऐसे नहीं लगेगा जैसे बर्डन है, स्कूल का एक भी सब्जेक्ट बर्डन नहीं लगेगा, स्कूल की टीचर बर्डन नहीं लगेगी, ना ही दोस्त बर्डन लगेंगे। घर गृहस्थ आश्रम चला रहे हो तो गृहस्थ आश्रम का
गुड, बैड एंड अगली साइड, कोई भी साइड है ना, वो सारी प्रेम से ही आप एड्रेस करोगे। गृहस्थ आश्रम में कोई भी चीज आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी। एवरीबडी विथ मी, समझ आ रही है? Yes, Mataji. शाबाश। सो प्रेम पूर्ण करना है, जो भी करते हो ना प्रेम से करो। आप अगर ABCD लिख रहे हो ना, प्रेम से लिखो। अभी परीक्षित 3rd स्टैंडर्ड में जाएगा, तो परीक्षित जो भी लिखेगा वर्ड्स, उसको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे 3 लाइन आंसर्स लिखने पड़ेंगे, 4 लाइंस। प्रेम से लिखना, बहुत लिखना पड़ रहा है ऐसे नहीं सोचना, प्रेम से धीरे धीरे लिखो। अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग करके लिखो, कोशिश करो मैं सुंदर हैंड राइटिंग लिखूंगा, इससे कृष्णा प्रसन्न होने वाले हैं मेरा हैंड राइटिंग देखकर। कृष्णा मेरे पास ही है, देख रहे हैं मेरा हैंड राइटिंग। प्रेम से लिखना, लिखना सीखोगे आप, अभी लंबे लाइन लिखना सीखोगे, प्रेम से लिखना, ठीक है? सो सच डिवोशनल सर्विस इज राइट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर लिविंग एंटिटी। ऐसी जो सेवा करता है ना, प्रेम पूर्ण सेवा करता है, यही सही दिशा है, यही सही एक्शन है। अब आपको कभी कंफ्यूजन होगा मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहे हो 100% दोगे और प्रेम से करोगे, दैट विल बी राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अब उसमें फेलियर आया या सक्सेस आया, उसका तो हमने तो डिसाइड ही कर लिया, हमने तो सोचना ही नहीं है। हम एंटी भगवत गीता जिएंगे ही नहीं, हम सोचेंगे ही नहीं कि मुझे उसमें से कोई मुझे पास कर रहा है या फेल कर रहा है, कोई मुझे जॉब दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई मेरी तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरी एक्नॉलेजमेंट हो रही या नहीं हो रही, रिकग्निशन हो रही या नहीं हो रही, हमारा तो काम ही नहीं है, ये तो कृष्णा का कंसर्न है। हमने क्या करना है, अपने अंदर से डाउट निकाल देना है कि मैं जो आप काम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, वो सही है या नहीं। सही है अगर प्रेम से कर रहे हो और 100% दे रहे हो, दिल से कर रहे हो ना, तो वो सही ही है, गलत नहीं हो सकता। Only misers desire to enjoy the fruit of their own work, just to be further entangled in material bondage. Except for the work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continuously bind the worker to cycle of birth and death. तो ये लाइन से ये लाइन तक देखो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। जो माइजर होता है ना, माइजर मतलब कंजूस, कंजूस होता है, सिर्फ कंजूस इंसान desires to enjoy the fruit of his own work. जैसे किसी ने आपने साइंस प्रोजेक्ट कर लिया, अब जो कंजूस है वो जाएगा साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए ये इच्छा रख के कि सबने मेरे काम को, मेरे साइंस प्रोजेक्ट को अच्छा बोलना चाहिए, तो वो कंजूस होगा। लेकिन जिसने साइंस प्रोजेक्ट किया, अपनी तरफ से बेस्ट दिया प्रेजेंटेशन देते वक्त, तो उसका क्या हो गया, फिर वो कंजूसी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि कोई उसकी तारीफ करेगा। ओनली माइजर्स डिजायर टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर वर्क। और उसकी वजह से क्या होता है, वो हमेशा जन्म लेकर आते हैं, वापस पुनर्जन्म होता रहता है। जो माइजर होता है ना, जो अपने फ्रूट एक्सपेक्ट करता है, मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरा तो सैलरी बढ़ना ही चाहिए, मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरा तो प्रमोशन होना ही चाहिए, मैंने अच्छा काम किया, मेरे को तो टीचर ने बेस्ट बोलना ही चाहिए, मैंने अच्छे से मम्मी पापा के लिए कुछ ड्राइंग किया, मुझे तो बेस्ट बोलना ही चाहिए। तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मम्मी पापा ने हमेशा ही बोलना चाहिए, वाओ दिस इज सो गुड, इसका मतलब क्या है, यू आर एंटेंगल्ड इन दी मटीरियल बॉन्डेज। जैसी ही आपको एक्सपेक्टेशन आती है, वो आपका नया पुनर्जन्म तय करती है। तो जो भी काम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं किया जाता, जैसे जूही बहुत अच्छे पेंटिंग्स करते हैं, ड्राइंग्स करती है, राइट, विघ्नेश भी ड्राइंग्स करता है, फिर वसुधा भी स्केचेस करती है, फिर निर्मिति इतनी अच्छे से बोल लेती है, रीडिंग इतने अच्छे से कर लेती है। अगर ये सब काम आप, इफ यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर कृष्णाज हैप्पीनेस रादर देन डूइंग इट फॉर मम्मी पापा की हैप्पीनेस या और किसी प्रभु जी और माता जी की हैप्पीनेस की बजाय अगर कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए करने लग जाओगे ना, तो वो एबोमिनेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप किसी और की हैप्पीनेस, आइदर खुद की हैप्पीनेस या दूसरे की हैप्पीनेस के लिए काम करना शुरू करते हो, तो दैट इज एंटी भगवत गीता, दैट इज एबोमिनेबल एक्टिविटी। डूइंग एक्टिविटी फॉर ओन हैप्पीनेस और अदर्स हैप्पीनेस and not doing the activity for Krishna's happiness is abominable activity. Got it? Yes.
एवरीबडी, मैं लिखती Yes, Mataji. हूँ। अच्छा, मैं लिखती हूँ आपके लिए, फिर आप डायरी में लिख सकते हो, ठीक है। डूइंग एन एक्टिविटी फॉर सेल्फ हैप्पीनेस और others happiness and not doing it for Krishna's happiness is an माताजी थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे प्लीज, क्या क्या ऊपर स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, अच्छा कर दिया, दिख रहा है नहीं थोड़ा नीचे लीजिए, इधर। हाँ हाँ, doing an activity for self happiness or others happiness and not doing it for Krishna's happiness is an abominable activity. जो भी करना है ना, मैं आपको बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस वेरी सीरियसली, सुनो कान खोल के, ठीक है, ध्यान दो, अगर नींद आ रही है तो उठ जाओ, लेकिन ध्यान दो इसको। जो लोग बहुत ज्यादा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, वो थक जाते हैं एक टाइम पर ना, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते, वो उनका इतना ज्यादा एपेटाइट लॉस हो जाता है, वो खाना भी नहीं खा पाते, उनको भूख लगना बंद हो जाती है, उनको नेक्स्ट प्रमोशन लेने का मन नहीं करता, सैलरी बढ़ाने का मन नहीं करता, या फिर उनको अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आगे बढ़ के अपना बिजनेस आगे ले जाने का मन नहीं करता। अगर गृहस्थ आश्रम में है तो बच्चों की खुशी के लिए उनको कुछ करना है तो वो भी नहीं कर पाते, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। एक बहुत ही स्टैग्नेंसी आ जाती है लाइफ में जब एक इंसान हमेशा दूसरे की खुशी के लिए बहुत काम करता रहता है। प्रॉब्लम कब होती है मैं बताऊं, डिवोटीज में भी प्रॉब्लम तभी होती है जब उनको लगता है कि मैं किसी प्रभु जी माता जी के हैप्पीनेस के लिए कर रही हूँ, मतलब मैं किसी और की खुशी के लिए कर रहा हूँ। सो जब एक डिवोटी दूसरे डिवोटी की हैप्पीनेस के लिए करने लग जाता है और कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए नहीं करता, तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह बर्नआउट हो जाता है। क्या होता है, क्या होता है, बर्नआउट। बर्नआउट मतलब बहुत तकलीफ होती है उसको कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, अदर्स हैप्पीनेस के लिए करते हो ना, तब क्या हो जाता है, थक जाते हो आप। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनको पीपल प्लीजर कहा जाता है। पीपल प्लीजर मतलब छोटे हैं तो मम्मी पापा की खुशी के लिए करेंगे, टीचर की खुशी के लिए करेंगे, बड़े हो जाएंगे थोड़े से तो दोस्तों की खुशी के लिए काम करने लग जाते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो प्रोफेसर हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, फिर बॉस की खुशी के लिए काम करने लग जाते हैं, टीम में जो लोग हैं उनकी खुशी के लिए करने लग जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, पत्नी की खुशी के लिए करने लग जाते हैं, बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। दूसरों का ही सोचना, खुद का बिल्कुल भी नहीं सोचना। अदर्स हैप्पीनेस, दूसरों के लिए इतना ज्यादा काम करते रहते हैं कि एक टाइम आता है जब उनको खुद ही लोग पसंद आना बंद हो जाते हैं, उनको लोग ही अच्छे नहीं लगते, उनको लगता है कि नहीं मुझे किसी के पास नहीं जाना, सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मुझसे काम कराते हैं और फिर मुझे रिटर्न में कुछ नहीं देते। बट आपने खुद ही शुरू किया ना उनकी खुशी के लिए काम करना। यू शुड डू फॉर कृष्णाज हैप्पीनेस। अगर कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए करोगे तो आपको बर्नआउट नहीं होगा। कृष्णाज हैप्पीनेस के लिए कोई भी काम किया जाता है तो वहां पे आपको, अगर सामने वाला इंसान वापस आकर आपको हेल्प भी नहीं करता ना, आप भूल चुके होते हो कि उस इंसान ने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला, या फिर उस इंसान ने वापस आके मेरी मुश्किलों में मुझे साथ नहीं दिया, मैंने उसको मुश्किल में साथ दिया था लेकिन उसने मुझे मुश्किल में साथ नहीं दिया। ऐसा थॉट भी नहीं आता आपके दिमाग में, क्योंकि आपने तो जो किया कृष्ण की खुशी के लिए किया। अब उसमें उस बंदे की क्या कनेक्शन है, वो बंदा या वो बंदी का क्या कनेक्शन है, वो वापस आए मेरे लिए करे ना करे, हाउ डज दैट मैटर, कृष्णा इज विथ मी, मैंने कृष्णा को खुशी कर दिया है, इससे परे मुझे क्या चाहिए। और सो दिस इज कॉल्ड एज डूइंग एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बेस्ट गिफ्ट है आपको, ये ऐसे लोगों से बचाता है जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा काम करने के बाद भी आपको बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचाता है ये सेंटेंस कि डू एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा को खुश करने के लिए करो, फिर आपको पलट के किसी ने आपके अच्छे काम के लिए भी बुरा बोला तो आपको कभी उसका धक्का नहीं लगेगा, कभी उससे आपका दिल छोटा नहीं होगा,
और आप रोओगे नहीं, आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे, आप चिंता नहीं करोगे। चिंता करी तो कृष्णा को दुख होता है कि मेरा भक्त चिंता कर रहा है, मुझ पे भरोसा नहीं है। चिंता करना मतलब कृष्णा को अपसेट करना। तो चिंता तक नहीं पहुंचना है तो सारे ही काम कृष्णा की खुशी के लिए करो। दूसरों को खुश करना बंद करो। दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो कितना खुश हो रहा है, ये सोचो क्या कृष्णा खुश हो रहे हैं। मैंने स्टेज पे अच्छा गाना गाया, क्या कृष्णा खुश हुए होंगे। मैंने स्टेज पे अच्छा डांस किया, अच्छी एक्टिंग की, क्या कृष्णा खुश हुए होंगे। ऐसे अपने आप को पूछने लग जाओ, हैव अ सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करो। कृष्णा परमात्मा बनकर हृदय में है। कृष्णा को पूछो, कृष्णा तुम हैप्पी हुए, मैंने ये बुक पढ़ा। कृष्णा मैंने प्रभुपाद की ये बुक पढ़ी, कृष्णा आर यू हैप्पी। कृष्णा मैंने आपकी एक लीला पढ़ी, आर यू हैप्पी कृष्णा। पूछो कृष्णा से, कृष्णा जवाब दे देंगे। आपको अंदर से जब खुशी होगी ना, आपको पता है कृष्णा खुश है। अब आपको दूसरे को जाकर दूसरे की खुशी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप बहुत करोगे समाज के लिए, आप मम्मी पापा के लिए बहुत करोगे, दोस्तों के लिए बहुत करोगे, सब कुछ करना, लेकिन कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए करना। कभी दूसरों की हैप्पीनेस के लिए मत करना, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस बहुत फिकल होती है। आज खुश है, दूसरे दिन दुखी है, परसों खुश है, अगेन दूसरे दिन फिकल है, दुखी है। आपको तो कृष्णा को प्रसन्न करना है, अपना 100% देना है और कृष्णा से वैलिडेशन मांगना है कि कृष्णा आर यू हैप्पी, एम आई डूइंग गिविंग माई 100%, कृष्णा इज दिस ओके और शुड आई गिव मोर इनटू दिस, शुड आई गिव मोर इनटू इट, शुड आई डू समथिंग मोर कृष्णा, will you be happy then? That is the ideal way of doing work and having dialogue with Krishna. नहीं तो फिर क्या ही भगवत गीता पढ़ी और क्या ही हमने सीखा, कुछ भी नहीं सीखा फिर हमने। गॉट इट? यस और नो? फिर हमारे हाथ से एंटी भगवत गीता बिहेवियर हो जाएगा। तो आपको भगवत गीता जीनी है डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट। सुबह उठने से लेकर रात तक ऐसे कर्म से, कोई भी कर्म है ना वो कृष्णा की खुशी के लिए करो। दैट विल बी यू वॉकिंग एंड टॉकिंग भगवत गीता बिहेवियर। आप चलते फिरते भागवत बन जाओगे। आपको भगवत गीता के श्लोक आ रहे या नहीं आ रहे, आपके कर्मों से आप दिव्य बन जाओगे। सो इस तरीके से आप साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को रोक पाओगे। अंडरस्टूड? आगे का हम कल करते हैं, ठीक है? 4 लाइन बची है, कल कर लेते हैं। भगवत गीता की जय। प्रभुपाद की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन जय। धाम की, जय समस्त भक्त वृंद की। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। आपने नोट्स लिखे होंगे तो मेरे साथ शेयर करो, ठीक है? यस माता जी। तो अगर नोट्स लिखते हो ना तो शेयर किया करो, ठीक है? हरि बोल, हरि दंडवत प्रणाम। बोल, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हाँ जी बोलो। माता जी आपने जिसमें वो टाइप किया था, आप एक बार वो एबोर्मल एक्टिविटीज का फिर से एक बार शेयर करेंगे, क्योंकि वो थोड़े स्टार्टिंग के पॉइंट्स मेरे मिस कैसे आउट हो गए। इसको ना, मैं शायद मैं लिख रही हूँ, मैं कुछ नोट्स और भी ऐड कर रही हूँ, तो मैं ये करके आपको शेयर करती हूँ, ठीक है? यस माता जी। या कॉपी पेस्ट करूँ व्हाट्सएप पे, कैसे करूँ? माता जी कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा। ठीक है, रुक जाओ, मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, व्हाट्सएप पे देती हूँ मैं आपको, ठीक है? यस माता जी। और भी कई सारी है।
मैं आपको इसमें व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ, ग्रुप में डाल देती हूँ, हरिकथा ग्रुप में, यस माता जी। है ना? यस माता जी। डाल दिया मैंने ये इसमें। एबोमिनेबल एक्टिविटी चाहिए ना आपको? एबोमिनेबल एक्टिविटी अवरम कर्म। ठीक है। यस माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। श्री कृष्णा।